ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪੁ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇ ਤਰੁੱਠਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਤਿਨਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੇ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਾਧੋ ਜਾਈ। ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਿਕ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਵੇਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਤਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਤਨ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਓ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਗਲਾ ਨਿਰਭਉ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਰ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਰਹਿਤ, ਜਾਂ ਨਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾਵਾਚਕ। ਭਉ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਆਸ ਹੈ। ਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ, ਆਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ 3 ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਜੀਉ ਸੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਰ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੱਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੱਲਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
गुरु अर्जन देव जी महाराज का दरबार लगा सी ते गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं सवाल किया। एक सिख ने कहते महाराज कोई ऐसा सिख है जिहड़ा दुख दे विच भी इक्को वर्गा ते सुख दे विच भी इक्को वर्गा होवे। गुरु अर्जन देव जी महाराज उस सिख का सवाल सुन के पहलां ते बड़े खुश होए। फिर महाराज ने कहा हाँ है महाराज असीं उहदे दर्शन करना चाहुंदे हां। वो सिख किस तरह का है, उहदी अवस्था की है। महाराज ने कहा तुसीं इत्थों थोड़ा दूर भाई भिखारी है, भाई भिखारी दे घर तुसीं चले जाओ। भाई भिखारी दे घर वो सिख जिहड़ा सीगा चला गया। वो जिहड़ा भाई भिखारी सीगा वो देसी घिओ वेचण दी उहदी दुकान सी, वो दुकान ते बैठा सी। ते जदों जाके देखिया ते हुण भाई भिखारी ने ते उन्हां नूं पहचानिया नहीं भी कौन है। गुरु अर्जन देव सिख आया क्योंकि हले गलबात नहीं हुई। तो जदों उस सिख ने देखिया, उस सिख ने की देखिया कि भाई भिखारी एक पैसे दे वास्ते गाहक नाल लड़ रहे हैं। वो किते गाहक उन्हां नूं कह रहा सीगा कि मेरे कोल एक पैसा नहीं हैगा। उदों पैसे चलते सीगे 2 पैसिਆਂ ਦਾ 3 पैसिਆਂ ਦਾ 1 किलो घिओ आ जांदा सीगा। ते ਉਹ एक पैसे दे लई गाहक दे नाल लड़ रहा सीगा। ते जिहड़ा सिख चल के आया सीगा पंजाब दी धरती तो, अमृतसर दी धरती तो गया, वो बड़ा देख के हैरान होया। कहते इहदे कोल भेजिया मैनूं गुरु साहब ने जिहड़ा एक पैसे दे लई लड़दा पिया। चलो गुरु साहब दा हुक्म सीगा भी तुसीं उहदे कोल रात रह के आउणा। मैं रात रहना। वो गाहक गया ते अगे जाके उन्हें कहा, जिहड़ा सिख गया सी अमृतसर तो, कहंदे मैनूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भेजिया। जदों क्या मैनूं गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भेजिया, वो अपनी गद्दी तो उठिया, उस सिख की बांह फड़ी ते बांह फड़ के अपने लागे बिठाया। कहंदे बैठ मेरे कोल, दस मैं तेरी की सेवा करा, तू किस तरह आया। कहंदे नहीं बस मैनूं गुरु अर्जन देव जी ने कहा कि तेरे कोल रात रह के आउणा। कहंदे चलो जी। उन्हें दुकान बंद की, उन्होंने अपने घर लै गया। घर लै गया तो घर जदों रात का प्रशादा छकण लगे तो उन्हें ना जल लैके हथ धवाउण लगा। कहंदा मैं जल ना हथ नहीं धोना। सिख ने कहा, कहंदे फिर तू कास ना हथ धोना। कहंदा मैं घिओ दे नाल हथ धोना। कहंदा उन्हें चक के घिओ का पीपा लिया के लागे रखता। घिओ का पीपा लागे रखता भी आला फड़ घिओ का पीपा जिन्ने मर्जी हथ धो। फिर उन्हें सवाल किया, कहंदा तू उत्थे ते एक पैसे दे लई लड़ रहा सी ते इत्थे तू कहंदा घिओ का पीपा कहंदा लिया के मेरे लागे रख दिता भी जिन्ने मर्जी हथ धो, जिस तरह मर्जी हथ धो। कहंदे ये की है। कहंदे सिखा ओ मेरी कहंदे किरत सीगी। वो मेरी की सीगी, किरत सीगी मेरी। ते किरत विच कहंदे ना मैं किसी नूं रुपया छड्डदा, ना मैं किसी तो रुपया घट लैना, क्योंकि मैं पूरा तोलदा ते पूरा ही दिना। वो मेरी सीगी किरत ते ये है कहंदे गुरु दी सेवा। कहंदे जिथे फिर गुरु दी सेवा आ जाती है ना, उत्थे मैं अपना आप नशावर कर देना, अपना आप मैं वार देना। वो सिख रात नूं प्रशादा छक के ते सौण लगा। ते जदों सौण लगा ते उहदे कमरे विच की देखिया जी, उहदे कमरे दे विच देखिया उहने एक फट्टा। वो फट्टा जिहदे ते लाश नूं पा के लैके जांदे आ। वो फट्टे दे लागे चिट्टे रंग दा कपड़ा पिया, कफन पिया। उस फट्टे दे उहदे कमरे दे विच होर भी बोरियां दे नाल पल्लियां सीतियां हुईयां पईयां। उन्हें देखिया, कहंदा भी इहदे घर फट्टा की कर रहा। ये जिहड़ा लाश है, लाश वाला फट्टा, ये तो शमशान घाट पिया हुंदा, इहदे घर की कर रहा। वो देख के बड़ा हैरान, अद्धी क रात होई, सौ ना सकिया, हार के उन्हें भाई भिखारी नूं बुलाया। कहंदे भिखारी आ तेरे घर दे विच फट्टा की काम कर रहा। मैं जदों आया तेरे घर विच मिठाइयां निकल रही सीगियां, तेरे घर विच रौनकां सीगियां, किते लड्डू बन रहे सी, किते मिठाई होर बन रही सी, पर आ फट्टा तेरे घर की कर रहा। कहंदे मैं की दसां तैनूं, परसों मेरे पुत्तर दी बरात है। जदों मेरे पुत्तर ने डोली लैके आउणा, डोली घर आउणी है ते घर आउंदियां ही मेरे पुत्तर दी मौत हो जानी है। फट्टा मैं कित्थों उदों छेती छेती लभांगा, मैं पहला ही इंतजाम किया होया।
उस सिख ने क्या कहते जे तेनू पहला पता है कि मेरे पुत्र ने चढ़ाई कर जाना ते फिर तू उस बच्ची नू क्यों विधवा कहते करना चाहुंदा। कहते मैनू अंदरों ज्ञान होया गुरु के चरणों दे विचों कि उस बच्ची की किस्मत दे विच इहो कुछ लिखिया होया है जिन्नू मैं नहीं मेट सकदा। जदों उस सिख ने इन्ने वचन सुने वो अपने मंजे तो बिस्तर तो उठ के ढह ढेरी हो गया उहदे चरणों दे विच। कहंदा आ सिख है जिहड़ा दुख दे विच भी दुखी नहीं है ते जिहड़ा सुख दे विच इन्नी अमीरी है लेकिन उहदे करके भी उहदे अंदर कोई हंकार नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज फरमाउंदे कहंदे दुख सुख दोनों समकर जानै और मान अपमाना हरख सोग ते रहे नियारो। महाराज कहंदे ना दुख ते ना सुख ये कहंदे ताई आवेगा निरभौ जपै सगल भौ मिटै। जे उस निरभौ दे नाल जुड़ांगे ना ते फिर अंदरों जिहड़े डर है ना जिंदगी दे वो सारे महाराज कहंदे खत्म हो जाणगे, वो सारे खत्म हो जाणगे। एक होर आप जी नूं गाथा दे नाल जोड़ा आ आपां हुणे ही शहादत वाले दिहाड़े मना के गए हैं। की उम्र है 7 साल ते 9 साल की उम्र। ਜਿਹੜੇ सूबे की कचहरी दे विच खड़े हो के कह रहे हैं कहंदे सूबिया तू सानू डराउणा चाहुंदा। साडा ते बापू ने सानू कहंदे बचपन दे विच ही मौत दा कहंदे सबक जिहड़ा वो पढ़ा दिता। की उन्हां दी उम्र है और कह रहे हैं हम जान दे के औरों की जान बचा चले। सिक्खी की नींव हम हैं सरों पे उठा चले। सिक्खी की नींव हम हैं सरों पे उठा चले। की उन्हां दे अंदर कोई डर। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं देखो चमकौर दी गढ़ी दे विच बापू गरज रिहा। बापू कह रहा ओ औरंगजेब तेरी 10 लाख की जिहड़ी फौज है ये बेईमान है। ये वादा तोड़ के इन्हां ने मेरे पिछे मेरा पिछा किया। जो इन्हां ने मेरे नाल बचन कीते सी कौल कीते सी उन्हों तोड़न वास्ते इन्हां ने एक पहर भी नहीं लाया, एक पहर तो पहला ही तोड़ दिता। कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद मैया तेगो तीरो तुफंग आमदंद। पैमा पैमा का अखरी अर्थ है बचन, शिकन मैंने तोड़ना। कि पैमा शिकन बेदरंग बेदरंग का अखरी अर्थ है झटपट। आमदंद ये मेरे पिछे आ गए, झटपट अपना वचन तोड़ के मेरे पिछे आ गए। मैया तेगो तीरो तुफंग आमदंद तेगा लैके आए, तीर लैके आए, बंदूखां लैके आए। ये गुरु गोबिंद फिर उही गल निरभौ जपै सगल भौ मिटै। जदों तुसी निरभौ दे नाल जुड़ोगे ना, निरभौ दा पाठ करोगे उहदे नाल जुड़ोगे ना, फिर अंदरले जिहड़े दुनियावी डर है वो खत्म हो जाएंगे। अगे चलिए आपां बचन कीता सी भै विच सब आकार है। सारी सृष्टि एक डर दे विच है, सारी सृष्टि दे विच एक डर है। निरभौ हर जियो सोए, लेकिन एक परिपूर्ण परमात्मा ही ऐसा है जिन्हों कोई डर नहीं है। तुसी ना आसा की वार दे विच एक बचन पढ़दे हो भै विच पवन वह सद वाओ। ये जिहड़ी हवा चल रही है ना ये परमात्मा दे भै दे विच चल रही है। भै विच चले लख दरियाओ। आ जिहड़े दरिया चल रहे हैं समुंदर चल रहे हैं ये उहदे भै दे विच है। भै विच अगन कड्डे वेगार। जिहड़ी आ अग है ये भी जिहड़ी है उहदे डर दे विच है, उहदे हुक्म दे विच है। भै दा आपां जे एक होर अर्थ कर लईए ना हुक्म कर लईए तो वह भी इत्थे टुकेगा पूरा। महाराज फरमाउंदे कहंदे भै विच सब आकार है, निरभौ हर जियो सोए। सिर्फ एक परिपूर्ण परमात्मा ही ऐसा है जिन्नू किसी का कोई डर नहीं। हुण एक होर अगे चलीए। साध संगत जी दो किस्म के डर है। एक डर है दुनियावी डर। दुनियावी डर जिस तरह आप एक छोटी जी उदाहरण लै लीए, अपने घर की उदाहरण लै लीए।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਰ। ਦੂਸਰਾ ਡਰ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਡਰ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ। ਹੈ ਡਰ ਉਹ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੰਬੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਾਹੇ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਰ ਹਰ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਸੋ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਏ ਕੀ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ, ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਡਰ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕੰਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਕੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਈਆਂ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਆ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੇ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ। ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ, ਇੱਕ ਵੈਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਆਜੜੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗਾਥਾ। ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਤਰਲੇ ਲਏ, ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੀਆਂ, ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ
दीनन की प्रतिपाल करे नित, संत उबार गनीमन गारे, पछ पशु नग नाग नरातप, सर्ब समय सबको प्रतिपारे, पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दया निध, दोखन देखत है। दोखन मैंने साडे माड़े कर्म भी देखदा, साडे माड़े कर्म भी देखदा, देखत है पर देत ना हारे, पर अपना देन वाला हथ कहंदे पिछे नहीं करदा। कहंदे मूसा जे उन्हें मैनू माड़ा कह दिता सीगा ते कहंदे तैनू पता नहीं कि मैनू माड़ा कहण दे नाल मेरा कुछ घटना नहींगा, ते तू उन्हें जे मैनू माड़ा कहता तू उहदे थप्पड़ मारिया, तेरा फर्ज सी उन्हू नाल जोड़दा, तैनू मैं जोड़न वास्ते भेजिया ना कि तोड़न वास्ते भेजिया। परिपूर्ण परमात्मा नू कोई माड़ा भी कवे वो कदी भी किसी का नुकसान नहीं करता, क्योंकि उहदे अंदर किसी दे लई कोई भी वैर नहीं है। निर्भव निर्वैर। अगला गुण है जी अकाल। आकाल ऐड़े नू वखरा कर दिए तो बन जाएगा काल। काल का आखिरी अर्थ है समा। सारी दुनिया समय दे विच है, साडा भी एक परमात्मा ने समा लिखिया होया, ते मैं आम तौर पर कहना हुन्ना साडा परमात्मा ने नहीं लिखिया, असी तो आप उन्होंने एफीडेविट लिख के दे के आए हैं। बाणी कहती मरण लिखाए, मरण लिखाए, उन्हें पहला साडे को लिखाया वै इस धरती ते भेजण तो पहला। तुसीं कदी इन्हां गल्लां नूं ना सोचियो भी किद्दां दी ओह खेड होवेगी, किद्दां मालक बैठा होएगा। असीं जदों इत्थे नहीं आए सी सानूं आवाज़ मारी होवेगी, आ मैं तैनूं धरती ते भेजण लगा ते तू अपना समा लिख के दे। महाराज कहंदे मरण लिखाए, पहले साडे को लिखाया उन्हें, मंडल में आए तां असीं इस धरती दे मंडल दे विच रूहे जमीन ते आए हैं, पहला उन्हां लिखाया। ते गुरु ग्रंथ साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते काल पाए ब्रह्मा बपधरा। ये जड़े अवतार है ये सारे ही कहते समय दे विच हन। कहते काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। महाराज कहते ये सारे समय दे विच है, लेकिन वो एक परमात्मा ऐसा है, तू अकाल पुरख सिर नहीं काला, तेरे सिर दे ऊपर कहते कोई समा नहीं है। कहते तू अकाल पुरख सिर नहीं काला, तेरे सिर दे ऊपर कहते कोई समा नहीं है। दुनिया ने कहते आना है ते उन्होंने जाना है, उन्होंने मिटना है, उन्होंने खपना है, लेकिन हे परिपूर्ण परमात्मा तू दुनिया दे आउण तो पहला भी सी, तू हुण भी है, ते जदों सारी सृष्टि आउण वाले समय च खत्म हो जाएगी तू उदों भी होना है। अकाल उस समय तो रहत है, उन्होंने समय दे विच आपां नहीं बन सकते। महाराज फरमाउंदे ते फिर तुसीं देखो जदों तुसीं जाप साहब की बाणी पढ़ते हो ना, जाप साहब की बाणी की पहली पंक्ति पढ़ के देखो। महाराज कहते नमस्त वंग अकाले, मेरी उन्हों नमस्कार है जिहड़ा अकाल है, जिहड़ा काल दे विच नहीं है। ते साध संगत जी जाप साहब की बाणी दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1100 तो वध वार परमात्मा नूं नमस्कार कीती है, वख-वख उहदे नाम लैके। नमस्त वंग अकाले, नमस्त वंग कृपाले। वो कृपालू है, वो दया है, वो जिहड़ा कृपाल शब्द है वो भी परमात्मा दे वास्ते है। महाराज कहते काल पाए ब्रह्मा बपधरा, काल पाए शिवजू अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। अकाल, अकाल तो अगे शब्द है जी मूरत। मूरत इनू बोलना, मूरत का आखिरी अर्थ साध संगत जी जिहड़ी कोई घर दे विच टंगी हुई तस्वीर मूरत वो नहीं है इहदा अर्थ। इस मूरत का आखिरी अर्थ है हस्ती, उहदा वजूद, उहदी हस्ती है, उहदा एक वजूद है। ठीक है सानू नहीं दिखाई दे रहा, ये गल मनते हैं, पर असी शक नहीं करना क्योंकि हवा भी दिखाई नहीं दिंदी।
ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੀਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ। ਕਰ ਆਸਨ, ਆਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁਫਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ। ਆ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟਤ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੂਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਔਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, रूप रंग और रेख पेख को कह न सकत कह, अचल मूरत। आचल, आचल दा अखरी अर्थ है वो हस्ती जेड़ी चलाएमान नहीं, जेड़ी खत्म नहीं हो जानी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते वो परमात्मा जेड़ा अचल है, ओदी हस्ती जेड़ी है अचल है। अचल मूरत, अनभव प्रकाश। अनभव प्रकाश के अर्थ अगे आउणगे जिहड़े जाप साहब च महाराज ने सहभंग शब्द वरतिया, उहदे आउणगे अगे अगे अर्थ आउणगे। महाराज फरमांदे चक्कर चिहन अर वर्ण जात और पात नहन जे, रूप रंग और रेख पेख को कह ना सकत कह, अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै। अच्छा, अमितोज का शब्द के तर मैं अर्थ कर दिया। ये तीन शब्दों के जोड़ तो बनया अमितोज। ऐड़े नूं वखरा कर दो, मित वखरा कर दो, ते ओज वखरा कर दो। ओज का अखरी अर्थ है जी शक्ति, मित का अखरी अर्थ है मिनना। ते जदों ऐड़ा अगे लग गया, ओदी इन्नी शक्ति है उन्होंने कोई मिन नहीं सकता। अमितोज, अमित ओज, ये शब्द बनया अमित ते ओज तो, दो शब्दों के जोड़ तो बनया। लेकिन असी जो पढ़ते हैं असी अमितोज कह के इनू पढ़ जाने हैं। ये शब्द है अमित ओज, दोवां तो मिलके बनया। महाराज कहते उसकी शक्ति इतनी है कि उन्होंने कोई कहते मिन नहीं सकता। वो कितना बलवान है, कितना उसके अंदर समर्था है। और असी रोजाना उन्होंने वास्ते जो बचन भी पढ़ते हैं, डंडौत बंधन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। तू सारिया कलावां दा, सारिया शक्तियां विच तू समरथ है। ये उहदी शक्ति है। महाराज फरमाउंदे अकाल मूरत, उहदी हस्ती जिहड़ी है ना वो ना मिटन वाली है। अकाल मैंने समय तो रहत है उहदी हस्ती, अकाल मूरत। अगला बड़ा प्यारा शब्द है जी अजूनी। अच्छा, इस शब्द नूं ऐड़े नूं ना कन्ना ला के नहीं बोलना, क्योंकि गुरमत का एक नियम है जी। वो नियम ये है कि ऐड़े दे विच पहला ही कन्ना मौजूद है। ऐड़े दे विच पहला ही कन्ना मौजूद है। ते इहदा असी उच्चारण करना अजूनी, ऐड़ा बोल के नाल जूनी। हुण अजूनी का अखरी अर्थ की है? अजूनी का अखरी अर्थ विद्वानां ने किया जिहड़ा जूना दे विच नहीं आउंदा। अजूनी का अखरी अर्थ किया विद्वानां ने जिन्नू पैदा करने वास्ते मां ते बाप की जरूरत नहीं है। जिन्नू बाबा कबीर जी कहते कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर। कहते कबीर बाबा कबीर जी कहते मेरा मालक वो है
कबीर को सुमामी ऐसो ठाकुर जाको माई ना बापो रे। जाको माई ना, हाँ ना ते मेरा ओदा मां है कहंदे कोई, ना ओदा कहंदे बाप है। ते जाप साहब जी महाराज कहंदे ताते ना माते, ताते ना ओदा कोई मां ते ना ओदा कोई बाप, कहंदे मेरी उन्नू कहंदे नमस्कार है। ताते ना माते। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी कह रहे हैं कि मैं उस रब नूं मनदा हां जिस रब दा कोई मां नहीं है, कोई ओदा बाप नहीं है। ते हिंदू धर्म दे विच ना एक गाथा आउंदी है, वो गाथा ये है जिस नूं ना गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपनी बाणी दे विच उहदा जिक्र किया। कहंदे हिंदू वीर कहंदे है कि श्री कृष्ण जी भगवान है ते ओ भादरों की जिहड़ी पूर्णमाशी तो 8वां दिन है उदों उन्हां दा जन्म होया। ये हिंदू धर्म की मनौत है। वो श्री कृष्ण नूं रब मनदे है, भगवान मनदे है ते कहंदे भी उहदा जन्म भादरों की जिहड़ी पूर्णमाशी आ रही है, पूर्णमाशी तो 8वें दिन जिहड़ा उहदा जन्म होया। उत्थे फिर महाराज की कहंदे आ, महाराज कहंदे सगली थीत पास डार राखी। कहंदे सारियां जड़ियां थितां हैगियां ये कहंदे तुसी एक पासे कर दित्तियां ते तुसी कहंदे कह रहे हो कि वो जड़ा अष्टम थीत, अष्टम है 8वीं, अष्टम थीत गोविंद जन्मा था। गोविंद कहंदे आ वो श्री कृष्ण। हुण अगे सुनियो महाराज देखो इस गल नूं महाराज किस तरीके नाल सिद्ध करदे आ भी वो जूना च नहीं आउंदा रब। कहंदे महाराज फरमाउंदे सगल थीत पास डार राखी अष्टम थीत गोविंद जन्मा था। 8वीं जिहड़ी पूर्णमाशी का 8वां दिन है उस दिन तुसीं कहता भी रब पैदा होया, श्री कृष्ण जी पैदा होए। फिर महाराज कहंदे भरमे भूले नर करत कचराइन। कहंदे तुसीं कहंदे कच्चे हो, कहंदे भरम ते भुलेखियां विच कहंदे पए होए हो। कहंदे फिर महाराज कहंदे जन्म मरण ते रहत नारायण। जिहड़ा रब है वो जन्म ते मौत तो कहंदे वखरा। कहंदे जन्म ते मौत तो कहंदे जन्म मरण ते रहत नारायण। जिहड़ा नारायण है वो कहंदे जन्म ते मौत तो कहंदे वखरा है। फिर अगर महाराज कहंदे कर पंजीर खवायो चोर। तुसी ओदी मूर्ति नूं जाके मंदिरां दे विच कहंदे पंजीरियां बना बना के ओदे मूंह नूं लाउंदे हो। ये मंदिरां दे विच काम कीते जांदे आ। वैसे मैं कहना हुन्ना तुसीं चंगे हो, वड्डियां भागां वाले हो, उठ के नहा के गुरुद्वारे आ जांदे हो, कोई पंजीरी नहीं घरों बना के लियाउणी पैंदी। कर पंजीर। अच्छा एक होर मैं तुहानूं उदाहरण दे, आड़ा महीना चल रहा माघ मजन संघ। हिंदू धर्म की मनौत की सीगी? इस महीने दे विच 68 तीर्थां ते जाके इशनान करना। ते गुरु अर्जन देव जी कहंदे इशनान ते सिखा तैनूं भी करना पैना। कहंदे महाराज फिर ते काम बड़ा औखा हो जाऊगा भी 68 तीर्थां ते जाना, इन्ने पैसे कित्थों लियाईए महाराज। ते महाराज कहंदे घबरा ना, इशनान तैनूं करना पैना, पर करना पैना मैं गुरुद्वारे आके ते साधु संतां दी धूड़ी विच इशनान। माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान। हर का नाम ध्याए सुन। पहला घरों अपने नाम ओदा ध्या के आओ, फिर गुरुद्वारे आके सुनो। ये अर्थ इदां होनी है हर का नाम ध्याए। जिहड़ा ध्याउणा वो तुहाडा होमवर्क है। होमवर्क बच्चे ने अपना करना मैं। जे होमवर्क बच्चा आके क्लास विच करे तो मैडम या मास्टर उन्होंने कुटदा वै कि तू अपना घर का काम इत्थे आके करदा पिया। महाराज फरमाउंदे हर का नाम ध्याए, फिर गुरुद्वारे आके सुन, फिर गुरुद्वारे तो बाहर जाके सबना नो कर आ जाके अपने घर वालियां नूं भी ठा लियो, जुलियां चो क्यों उठ असी आह सुन के आए हैं गुरुद्वारे, आ सुन। हर का नाम ध्याए सुन,
सबना नो कर दान, सबना नो कर। महाराज कहते तैनू भी 68 तीर्थां ते नहीं, तैनू गुरुद्वारे आके साधुआं दी संगत दी जिहड़ी धूड़ी है उहदे विच तैनू शब्द दा इशनान करना पैना। खैर मैं बेनती कर रहा सी, कर पंजीर खवायो चोर, ओ जन्म ना मरे ना साकत ढोर। कहते ओ रब ना ते मरदा है ना ते जमदा है, तुसी कहते मूर्खो जिहड़े ये काम कहते कर रहे हो। फिर महाराज कहते सगल पराध देह लो रोनी, वो की करते हैं श्री कृष्ण की मूर्ति नूं पा के ते उहनूं लोरियां दिंदे आ। जिद्दां मां नहीं बच्चे नूं पा के उहदे भंगूड़े च पा के दिंदी है लोरियां, इदां चक चक के उहनूं लोरियां देणगे। महाराज कहते तुसी अपराध करते पे हो, ये गलत काम है। कहते रब तो कहते है ही नहीं, रब नूं थोड़ी तुसीं कहते लोरियां दे सकते हो। महाराज कहते सगल पराध देह लो रोनी। फिर अगे महाराज कहते सो मुख जलो, ओ मूंह ही कहते सड़ जावे। कहते सो मुख जलो जित कहे ठाकुर जोनी, जेड़ी रसना कहती पई है कि रब जूना दे विच आया, ओदा आ मां है, ओदा आ बाप है, वो मां के गर्भ विच आया, फिर 9 महीनों बाद पैदा होया। महाराज कहते सो मुख जलो, वो जबान ही कहते सड़ जावे। जित कहे ठाकुर जोनी, जेड़ा कहता है कि ठाकुर जेड़ा वो जूना विच आ रहा। एक होर प्रमाण दे के समा हो गया, आपां संपता वल आईए। महाराज कहते तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही, तू जूना विच नहीं आउंदा। कहंदे तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही, तू हुक्मी साजे सृष्ट साज समावही। तेरे हुक्म दे नाल ही ये सृष्टि बनती है, ते तेरे हुक्म दे नाल ही इस सृष्टि नूं तू एक थां ते इकट्ठी कर दिना, अपने विच समा लेना, अपने विच समा लेना। महाराज कहते तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही, तू जूना दे विच नहीं होंदा, वो अजूनी है जी, वो जूना तो रहत है। चलो अगला आपां अर्थ कर लीए, 2 मिनट है। सह भंग, सह भंग का मतलब की है जी, बड़े ध्यान नाल सुनियो। हुण वो अपने आप तो प्रकाशमान है, अपने आप तो, जिस तरह असी अग बालते हैं, असी लकड़ां इकट्ठियां करते हैं, फिर उहदे ते असी कुछ मिट्टी का तेल वगैरह पाने हैं, फिर असी उहनूं बाहरों अग लाने, चुआती लाने, तां ही बलदी अग, उदां नहीं बलदी अग। अगली गल सुनियो। हुण दुनिया दे लोग सूरज नूं देवता मनदे आ, चंद्रमा नूं देवता मनदे आ क्योंकि उहदी रोशनी है, तां मनदे आ जी। मैं एक साइंस का विद्यार्थी हाँ। साध संगत जी, जी सूरज की रोशनी है वो ओदी अपनी रोशनी नहीं है। उहदे विच की हो रहा, हाइड्रोजन गैस वो हीलियम च बदल रही है। दूजी गैस हीलियम, जिन्हां बच्चों ने 10वीं 11वीं साइंस पढ़ी होगी उन्होंने पता होगा इस गल का। जदों हाइड्रोजन गैस हीलियम विच बदलती है तो उहदे चों एक ऊर्जा निकलती है, जिस ऊर्जा दे विचों 2 चीज़ां हुंदियां, एक हुंदा प्रकाश ते एक हुंदा ताप, हीट आपां कहिए गर्मी। वो जिहड़ी सूरज की गर्मी है ना, वो सानू हेठा मिल रही है, वो सूरज का प्रकाश हेठा मिल रहा। इहदा मतलब कि जे सूरज दे विच हाइड्रोजन गैस खत्म हो जाए तो सूरज का प्रकाश नहीं है, तो फिर वो किद्दां देवता हो गया बई। हुण महाराज की कहते, महाराज कहते तू इन्हां नूं छड्ड। चलो दूजी गल कर लईए एक चंद्रमा की। चंद्रमा की रोशनी अपनी नहीं है, वो सूरज तो उधारी लैके चमक रहा। ये विद्वानां ने साइंस जिहड़े साइंटिस्ट है उन्हां दी खोज है, मेरी खोज नहीं है। चंद्रमा की रोशनी अपनी नहीं है, वो सूरज तो रोशनी लैके फिर वो चमक रहा। तो महाराज कहते ये तो सारे उधारियां रोशनियां लै रहे हैं, आ मैं तेनू उहदे नाल जोड़ा जिहड़ा सुत्ते सिद्ध ही आप प्रकाशमान है, जिन्हों सह भंग कहते हैं। सह भंग कहते हैं, जिन्हों की कहते हैं सह भंग। सह भंग मैंने अपने आप तो जिहड़ा प्रकाशमान, उन्होंने किसी दे प्रकाश की लोड़ नहीं है, सगों असी उहदे तो प्रकाश लेना। अगे चलीए। हुण असी जदों भी गुरु साहिबानां दे दिहाड़े मनाने, असी कहने ना कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा,
गुरु अंगद देव जी का प्रकाश दिहाड़ा। प्रकाश का मतलब की है, उन्हां दी जिंदगी दे विच जिहड़े उन्हां ने सानू अपनी हयाती दे विच सानू जिहड़े सिद्धांत दिते है कि आ रोशनी लै ते इस तरीके दे नाल अपनी जिंदगी नू बसर कर, तेरी जिंदगी विच कदी हनेरा नहीं आवेगा। इहदा आपां विचार करांगे कल नूं गुर प्रसाद दे विच। गुरु कौन है ते गुरु दी बख्शिश जिहड़ी है वो किद्दां हुंदी। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां, होईयां भुल्लां चुकां खिमा करनियां। आओ आपां एक शब्द दे नाल सारे जने सांझ पाइए, तुहाडी रसना ते भी शब्द आवे। वो शब्द है कि गुरु साहिब दे दर्शन जिहड़े हन वो देख के ही मेरे अंदर जिहड़ा हैगा वो जीवन जिहड़ा मैनू मिलता है। महाराज फरमाउंदे रोज पढ़ते हैं, आखां जीवां विसरे मर जाऊं। दर्शन देख देख गुर, उस गुरु दे दर्शनां नू देख के मेरे अंदर जिहड़ा। ते आखिरी बचन मैं कह के समाप्ति करां, विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो। विसर नाहीं दातार अपना नाम, सारे जपो ना। विसर नाहीं दातार अपना नाम देओ। विसर नाहीं दातार अपना नाम देओ। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, दर्शन देख जीवा गुर तेरा। पूरन कर्म होए प्रभ मेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एह बिनंती सुन प्रभ मेरे, एह बिनंती सुन प्रभ मेरे। देह नाम कर अपने चेरे, देह नाम कर अपने चेरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की